Bis jetzt haben wir nur Ja-Nein-Fragen gesehen. हमने फिलहाल अभी तक जो क्वेश्चंस की टाइप देखी वो कौन सी थी? या नाइन फ्रागन. या नाइन फ्रागन मीन्स यस नो क्वेश्चंस. ऐसे सवाल जिनका जवाब या तो हाँ में दिया जाता है या फिर ना में दिया जाता है. Und wie formuliert man diese Fragen? उन सवालों को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है? wer kann mir sagen? कौन बताना चाहेगा? Wie ist der Satzbau? सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है या नाइन फ्रागन का, ऐसे सवालों का? हम्म, Was kommt zuerst? Was kommt danach? पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? ओके, हाँ. हुमेरा. हुमेरा. यस सर। सबसे पहले वर्ब आता है, वर्ब. sehr gut. फिर सब्जेक्ट Subjekt und dann और फिर ऑब्जेक्ट। Objekt. Sehr gut. Das wird eine Ja-Nein-Frage. ये बन गया आपका Yes-No-Question. Zum Beispiel, क्या तुम पानी पी रहे हो? Trinkst du Wasser? वासा। Sehr gut. क्या तुम पिज्जा खा रहे हो? Isst इस दो पिज्जा। du Pizza? Einfach. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें वर्ब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, सेकंड पोजीशन पर सब्जेक्ट हो और एंड में क्या हो, ऑब्जेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है या नाइन फ्रागन. और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब सिर्फ दो तरीकों से ही दिया जा सकता है. या तो या से antwortest du mit ja oder antwortest du mit nein. Ja, ich esse Pizza oder nein, ich esse keine Pizza. मैं कोई पिज्जा नहीं खा रहा. Verstehen Sie? Aber, लेकिन, heute lernen wir keine Ja-Nein-Fragen. आज हम Ja-Nein-Fragen यानी Yes-No Questions को नहीं देखेंगे. Heute lernen wir W-Fragen. W-Fragen means W questions. Und in Lektion, welche Lektion ist das? Lektion एल्फ। एल्फ। 11. Sehr gut. Lektion 11. Heute lernen wir W-Fragen. आज देखेंगे कि W-Fragen यानी W questions क्या होते हैं. Was bedeutet Frage? Die Frage. Frage bedeutet question. क्वेश्चन। Question. Frage कहा जाता है questions को. और एक से ज्यादा questions को कहा जाता है Fragen. Ich habe eine Frage. I have a question. Ich habe zwei Fragen. I have two questions. Ich habe viele Fragen. I have a lot of questions. Hast du eine Frage? Do you have a question? Ja, ich habe eine Frage. Ja, I have a question. Oder nein, ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. I don't have any question. Frage noun है, याद रखिएगा. Darum benutze ich kein, इसीलिए मैंने kein का यूज किया. आई होप के काइन में और nicht में डिफरेंस क्लियर होगा सबको ना. Sehr gut. Dann, was ist W-Frage? oder wann benutzt man W-Fragen? W questions का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? Ja, nein, Fragen. या नाइन फ्रागन भी तो सवाल होते हैं, तो इन सवालों से ही काम चलाया जा सकता है ना. तो अलग से एक टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है, वे फ्रागन पढ़ने की क्या जरूरत है? Why we use W questions? Warum? Warum benutzen wir W-Fragen? W questions का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या इनको क्यों फॉर्मुलेट किया जाता है? हम्म, वह मिस्टर antworten कौन बताना चाहेगा? अरीबा. ओके. सर या नाइन फ्रैगमेंट में सिर्फ हम कंफर्मेशन करते हैं, मतलब कंफर्म करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है या फिर नहीं है, सिर्फ यस नो में आंसर करते हैं। और जब हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना हो, डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, तो फिर हम वे फ्रैगन का यूज़ करते हैं। Sehr gut, Ariba, sehr gut.
If we acquire, if we acquire, or if we need any specific information, wenn wir eine bestimmte Information brauchen, na, dann benutzt man immer W-Fragen. हम हमेशा W questions का इस्तेमाल करते हैं. W-Fragen और W questions are the questions in German. ये जर्मन जबान के ऐसे सवाल होते हैं that start with a W word, जो हमेशा एक W word से start किए जाते हैं. Und haben wir viele W-Wörter. We have a lot of W words. W-Wörter. W-Wörter means W words. Zum Beispiel wer, was, wo, wann, warum, wie, wohin, woher. Haben wir viele Wörter? We have a lot of W words in German. And they used to ask for specific information, not just yes or no. ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है ताकि किसी भी सिनेरियो से रिलेटेड मजीद जानकारी ली जा सके. सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जाएगा. They help us get detailed information like identity, location, time, reason, etc. Und wir fragen sind ganz wichtig. im deutschen German में W questions का भी बहुत अहम किरदार होता है. Verstehen Sie? वो बात जो हम या nein फ्रागे का इस्तेमाल करके नहीं पूछ सकते, उस बात को वे फ्रागन का इस्तेमाल करके पूछा जाता है. Verstehen Sie? Zum Beispiel, hast du ein Auto? Hast du ein Auto? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? Ist das W-Frage oder Ja-Nein-Frage? Ja-Nein-Frage. Ja-Nein-Frage? Nein, Frage. Ja-Nein-Frage. Hast du ein Auto? तुम्हारे पास गाड़ी है? Du hast nur zwei Antworten. You only have two answers. Antworten means answers. You only have two answers. Sagst du, आप मुझे कहोगे, oder antwortest du, आप कहोगे, ja, ich habe ein Auto. हाँ, मेरे पास गाड़ी है, oder nein, ich habe kein Auto. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है. इन दो जवाबों के अलावा कोई तीसरा जवाब नहीं हो सकता. And if I want to have some specific information, अगर मुझे मजीद कोई जानकारी दरकार हो, du antwortest mich, अगर आप मुझे जवाब दो कि ja, ich habe ein Auto, हाँ, मेरे पास गाड़ी है. अब मुझे आपसे पूछना है कि ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी तो है, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? कितनी गाड़ियां हैं? How many cars do you have? Specific information, further information. और further information acquire करने के लिए W words का इस्तेमाल किया जाता है. और मैं आपसे पूछूंगा Frage ist dich कि wie viele Autos hast du? Wie viele Autos? How many cars do you have? Wie viel? W word, W word. W-Frage, W question. Klar? Ja, da klärt es सबको कि warum und wann benutzt man W-Fragen? W-Fragen का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है und was ist der Unterschied zwischen Ja-Nein-Fragen und W-Fragen? Yes-No questions में और W questions में क्या फर्क है? ये क्लियर है सबको यहाँ तक? Wenn etwas unklar ist, dann frag mal, पूछ ले. सब समझ आएगा तो पढ़ने में मजा आएगा. शाहिद, निहाल, नवीद, नशीद, उम्मे हबीबा, हमजा, alles klar? Ja, मिस नुसरत, मिर्जा अली, मरियम जवेरिया, हुमेरा, दुआ ज़हरा, alles klar? Yes, बिलाल, all clear. अली नवाज, अली फारूक. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir ein paar W-Wörter. सबसे पहले कुछ W words को देखते हैं. Zum Beispiel äh, schreibe ich hier ganz oben ऊपर लिखता हूँ.
Ja, nein, Frage. Ja, nein, Frage means zum Beispiel Ja, nein, Frage schreibe ich ja ganz oben. Ja, nein, Frage means uh, yes, no question. Okay, yes, no question की बात करते हैं पहले. Du kommst, du kommst. Was bedeutet dieses Art? इस सेंटेंस का क्या मतलब है? Du kommst. तुम आ रहे हो. तुम आ रहे हो. You are coming. तुम आ रहे हो. Du kommst. Ich komme. मैं आ रहा हूँ. Du kommst. तुम आ रहे हो. Ganz einfach. ना? Nur ein Subjekt und ein Verb. सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और क्या है इसमें? आसान तो है. Wenn ich fragen will, अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या तुम आ रहे हो? Wie frage ich? मैं कैसे पूछूंगा? और सवाल पूछने का क्या रूल है? Kommst. Comes to. Kommt am Anfang. ये जो kommst है ये कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर. और सवाल कैसा बनेगा? सवाल बनेगा कि kommst du? Zum Beispiel kommst du? क्या तुम आ रहे हो? Das ist eine Ja-Nein-Frage oder W-Frage. ये yes no question बना या W question बन गया? Yes. निहाल. तो ये तो यस नो क्वेश्चन है, कॉम्स टू. yes no question है. क्यों? सर क्योंकि बस पूछा है कि क्या तुम आ रहे हो, तो हमें बताना है हाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे. हाँ, या, या, ich komme, हाँ मैं आ रहा हूँ. oder nein, ich komme नहीं. nicht, मैं नहीं आ रहा. इसके अलावा कोई तीसरा जवाब तो नहीं होता ना. यस सर. और दूसरी कंफर्मेशन क्या है कि इस सेंटेंस में फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? वर्ब. Verb. कॉन्जुगेटेड वर्ब. और वो कॉन्जुगेटेड वर्ब सिर्फ कहाँ आता है? यस नो क्वेश्चंस में. या nein fragen. Klar? Sehr gut. Kommst du? क्या तुम आ रहे हो? Ja, ich komme. हाँ मैं आ रहा हूँ. Oder nein, ich komme nicht. मैं नहीं आ रहा. Jetzt ab brauche ich eine bestimmte Information. Now I need a more information about you. अब मुझे आपसे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए कि तुम आ तो रहे हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम कब आ रहे हो? कब? और कब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जर्मन में एक W वर्ड. und das heißt wann. Pronounce with me wann. One. Wann. Wann One. ist ein W-Wort. ये क्या है? W-Wort. W-Wort means W word. और इस W word का इस्तेमाल किया जाता है टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए. टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस कि कोई काम अगर हो रहा है तो कब हो रहा है? तुम आ रहे हो तो कब आ रहे हो? मैं जा रहा हूं तो कब जा रहा हूं? क्लास हो रही है तो कब हो रही है? क्लास खत्म होगी तो कब खत्म होगी? पार्टी कब होगी? कब? वन. तो W क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने का बहुत सिंपल सा रूल है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? या नाइन फ्रागे वाला ही रहेगा. सिर्फ शुरुआत में क्या आ जाएगा? W वर्ड. einfach. वन. वन kommst du? वन kommst du? तुम कब आ रहे हो? einfach. इसमें क्या मुश्किल है? ओके बस हमने क्या लगा दिया इस सेंटेंस में? एक W वर्ड, वे वर्ड. वन. वन मीन्स कब, यानी when ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश में कहा जाता है when. क्ला. फैस्टीन जी समझ आ रहा है सबके? अली नवाज, अली फारूक, बिलाल अहमद, बिलाल अख्तर, दुआ जहरा, फिजा. Alles klar. ओके Yes, sir. जय गुड. अच्छा. वन कॉम्स डू. तुम कब आ रहे हो?
वन ist the party. पार्टी कब है? वन ist the party. Kommt immer ein W-Wort. सबसे पहले क्या आएगा? एक W-Wort आएगा. Und danach kommt immer ein Verb. उसके फौरन बाद क्या आ जाएगा? एक वर्ब आ जाएगा फौरन बाद. Verstehen Sie? Sehr gut. Dann wer. Pronounce with me wer. Wer means Wer? Wer? who यानी कौन. Yeah. Wer bist du? Wer bist du? Who who are you? Who are you? तुम कौन हो? Wer bist du? Ich bin Ali. मैं अली हूँ. Ich heiße बिलाल. मुझे बिलाल कहा जाता है. My name is दानियाल. मेरा नाम दानियाल है. अब wer bist du? लेकिन तुम कौन हो? Wer means कौन. Wer ist er? Wer ist er? वो कौन है? Verstehen Sie? Klar, समझ आया सबके? Wer kommt heute? Wer kommt heute? आज कौन आ रहा है? Wer kommt heute? आज कौन आ रहा है? Ali kommt heute. आज अली आ रहा है. Ich komme heute. आज मैं आ रहा हूँ. Ich komme morgen. मैं कल आऊंगा. Bilal kommt morgen. बिलाल कल आएगा. अब wer kommt heute? आज कौन आ रहा है? कौन wer? Klar? Okay, dann was. Was ist auch ein W-Wort. Was भी एक W-Word है. मिस नुसरत हाजुन अफखार कोई क्वेश्चन? जी सर, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें हमने व्या में हमने कॉम मतलब कॉमन की थर्ड पर्सन वाली जो कॉम्ट लगाते हैं वो टी वाला, यही क्यों लगाया? बिल्कुल नॉर्मल वाइज ऑफ उर्दू. उर्दू की अगर बात की जाए तो मिस नुसरत, अगर आपको नहीं पता कि कौन आ रहा है तो आप क्या कहती हैं कि आज कौन आ रहा है? जी कौन आ रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन जी सिंगुलर. ठीक. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में चाहे कोई नेम हो या एया हो सकता है जी हो, इन सब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? कॉम्ड. थर्ड पर्सन सिंगुलर ना. Klar, sehr gut. Dann was. Was bedeutet क्या? Was machst du? तुम क्या कर रहे हो? Machst. Woher kommt aus machst? Machst kommt aus machen. Machen means to do something. Was machst du? तुम क्या कर रहे हो? या तुम क्या करते हो? What do you do? Was ist das? What is that? ये क्या है? Was ist das? Das means that. Klar, was ist auch ein W-Wort. ये भी एक W-Word है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अक्वायर करता है. Klar, dann wann. Wann haben wir schon gesehen? Wann हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Was zeigt wann. Wann क्या शो करता है? Und wann benutzt man wann. Wann का इस्तेमाल कब किया जाता है? कौन बताएगा? Wer müsste antworten? Wer müsste antworten? Hamza. सर जब टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस से Time रिलेटेड. related questions. Sehr gut. Sehr gut. Time related questions. Etwas passiert. कुछ हो रहा है. Aber wann passiert das? कब हो रहा है? Okay, sehr gut. Dann wo. Wo bedeutet कहाँ. Wo means कहाँ. And we use this way word.
In order to ask about location, इस वे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी नाउन की लोकेशन दरियाफ्त करने के लिए. Zum Beispiel, wo wohnst du? Wo wohnst du? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Wo wohnst du? Wo means कहाँ? Wo means कहाँ? Wo ist mein Buch? मेरी किताब कहाँ है? Wo ist mein Buch? Where is my book? मेरी किताब कहाँ है? Location of any object. Location. Klar? Wo? Wo means where? यानी कहाँ? Ich rufe dich an, मैं आपको कॉल करूं und frage ich, मैं आपसे पूछूं wo? Wo bist du? Wo bist du? bedeutet where are you? तुम कहाँ हो? Dann antwortest du, आप मुझे जवाब दो. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. मैं तो घर पर हूँ. Ich bin zu Hause. अब आपने अपनी लोकेशन बताई. लोकेशन पूछने के लिए जो W वर्ड यूज किया जाएगा वो कौन सा है? वो. और लोकेशन बताने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है. वो कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब जो लोकेशन डिफाइन करता है. हम्म, So, so, Zu oder sein? Time. Sein, sehr gut. sein, Sein, sein. sein. Sein is a helping verb that shows location, identity, state or condition. Klar? Nashid, Nashid, hast du noch Frage, कोई question? यस सर. सर ये क्वेश्चंस के अंदर जैसे वो इस das Buch है, इसके अंदर आर्टिकल के साथ पूछना जरूरी है या विदाउट आर्टिकल भी क्वेश्चन मतलब विदाउट आर्टिकल भी ग्रामेटिकली हो करेक्ट सकता होगा? है. बिल्कुल विदाउट आर्टिकल भी ठीक है. लेकिन अगर आप किसी चीज को स्पेसिफिकली फोकस करते हैं तो उसके साथ जो है वो bestimmte आर्टिकल आता है यानी डेफिनेट आर्टिकल das. ओके. ओके. आप चाहें तो उन्हें आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं. Klar? हाँ. हाँ Okay, सर. sehr gut. Dann kommen wir auf wie viel. Pronounce with me. Wie viel. We feel. We feel. Feel. Wie viel bedeutet how much or How much? how many. How much or how many. Zum Beispiel, uh, do you have a car? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? Wie fragt man? कैसे पूछा जाएगा? Hmm? Zum Beispiel, तुम्हारे पास एक गाड़ी है. Normaler Satz. Simple sentence. Du hast ein Auto. Du hast ein Auto. तुम्हारे पास एक गाड़ी है. Wie formuliert man eine Frage? एक सवाल को कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा? या nein Frage. Yes, no question. Hast du ein Hast Auto? du ein Auto? Sehr gut. Hast du Du ein Auto? क्या ein तुम्हारे Auto? पास गाड़ी है? Ja, ich habe ein Auto oder nein, ich habe kein Auto. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है. इस सवाल का जवाब सिर्फ दो तरीकों से दिया जा सकता है. या से या फिर नाइन से. इसका मतलब ये सवाल क्या था? Yes, no question. Ja, nein Frage. If I want to ask about the quantity of cards you have, अगर मुझे पूछना हो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, then benutze ich auch ein W-Wort. अब मैं इस सवाल को पूछने के लिए एक W वर्ड का इस्तेमाल करूंगा अपने सवाल में. और वो W वर्ड क्या होगा? W वर्ड क्या होगा? वी We फील. We Wie feel. viel? Sehr gut. Und
फ्रागेश मैं पूछूंगा कि वी viele Autos hast du? Wie viele Autos hast du? कितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास? Wie viele Autos hast du? अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल जो यस नो क्वेश्चन था उसमें वर्ब पहले आता था, उसके बाद सब्जेक्ट, और आखिर में क्या आता था? ऑब्जेक्ट यानी नाउन आखिर में आता था। लेकिन ये W वर्ड एक ऐसा W वर्ड है जो हमेशा अपने साथ एक नाउन को अक्वायर करता है। हमेशा ये W वर्ड हमेशा अपने साथ एक नाउन को कैरी करेगा, जिस नाउन की क्वांटिटी पूछी जा रही है। सो बाइशपील तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? कितनी गाड़ियां? कितनी गाड़ियां? वी फील आउटोस। सो बाइशपील, हाँ। सो बाइशपील, तुम कॉफी पीते हो। ओके, तुम कॉफी पीते हो। डू डू ट्रिंक्स्ट काफे। डू ट्रिंक्स्ट काफे। कॉफी पीते हो। तुम कितनी कॉफी पीते हो? कितनी कॉफी पीते हो? वी फील वी फील काफे ट्रिंक्स डू। वी फील काफे ट्रिंक्स डू। कितनी कॉफी पीते हो? ओके, सो इफ आई वांट टू acquire an information regarding the quantity of any noun, किसी भी noun की quantity, how many, how much, then minute से शीमा we feel हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाएगा? we feel का। we feel का मतलब how many भी होता है और how much भी होता है। zum Beispiel we feel kostet das, we feel kostet das, how much does it cost, इसकी कितनी कॉस्ट है, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। We feel sight has do, we feel sight has do, तुम्हारे पास कितना वक्त है? Zum Beispiel, हाँ, तुम्हारे पास वक्त है। ओके, wie sagt man कैसे कहा जाएगा? normaler Satz, simple sentence, तुम्हारे पास वक्त है। Du hast, Side. du hast Zeit means you have time, you have time। Du hast Zeit, einfach, इसमें क्या मुश्किल है? Du hast Zeit means you have time, तुम्हारे पास वक्त है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? क्या तुम्हारे पास वक्त है? Hast du Zeit? Hast, hast kommt am Anfang। hast कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर। उन फ्रागमान, और ऐसे पूछा जाएगा कि hast du Zeit, क्या तुम्हारे पास वक्त है? Ist das eine Ja-Nein-Frage oder W-Frage? ये W-Frage लग रहा है मुझे। या नाइन फ्रागे है या W-Frage है? Ja. Ja, nein, sir. Frage. या नाइन Ja, nein, फ्रागे। Frage. sehr gut, warum, क्यों? इसका दो ही तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना में। sehr gut, hast du Zeit, क्या तुम्हारे पास वक्त है? या ich habe Zeit, हाँ मेरे पास वक्त है। oder nein, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, मेरे पास कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है। हाँ या ना, उन antwortest du में आप मुझे जवाब दो। या ich habe Zeit, हाँ मेरे पास वक्त है। and now I want to acquire further and more information, अब मुझे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि तुम्हारे पास वक्त तो है, कितना वक्त है, कितना वक्त है। Dann benutze ich ein W-Wort, तो अब मैं इस सवाल को पूछने के लिए एक W वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, और वो W वर्ड कौन सा होगा? कितना वक्त, कितना। We feel. We We feel, feel. we feel। तो क्या इस सवाल को आगे बढ़ा दिया जाएगा? और इस सवाल से पहले
वी फील लगा दिया जाएगा, ये ठीक है? वी नो फील सर। हैज डू साइट, नो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो हमेशा एक नाउन को एक्वायर करेगा। जैगूट नेहाल, जैगूट। क्योंकि ये जो वे वर्ड यानी डब्ल्यू वर्ड है, ये हमेशा अपने साथ एक नाउन को अक्वायर करता है, हमेशा। Dieses W-Wort kommt immer mit einem Nomen. ये हमेशा अपने साथ नाउन को लेके चलता है, जिस नाउन की क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो सवाल कैसे सही होगा कि we feel sight, we feel sight has do, we feel sight has do। तुम्हारे पास कितना वक्त है? फर्स्टीन जी, समझ आया यहाँ तक? नेहाल हजूना फाग कोई क्वेश्चन आपने हैंड रेस किया था? और alles klar। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम्म, आपने बोला वी फील, तो बेसिकली वी फील पूरा एक वर्ड है, राइट? बिल्कुल। खाली वी से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? खाली वी से हम्म। बिल्कुल। वी एक अलग से भी वे वर्ड है, द शाउन वी अगलाइश, उसको अभी देखते हैं। अच्छा अच्छा, सही। ओके, वी एक अलग से भी अलहदा भी है। वी का इस्तेमाल, वी को अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है। सही ओके, सर, थैंक। bis jetzt alles klar। यहाँ तक सब क्लियर है? बिलाल, हुमैरा, अरीबा, दुआ ज़हरा, मिर्जा अली, यस सर, क्लास। नेहाल, नवीद, नशीद, उम्मे हबीबा, शाहिद, बशीर, alles klar। क्लास। ओके, मरियम, जवेरिया, फिजा, फर्स्टीन जी, बिलाल अख्तर, नौफ आगे कोई क्वेश्चन? बिलाल लगता है ऐसे खतरनाक इमोजी ना बनाए। समझ नहीं आया क्या? क्या नहीं समझ आया? शर्माने वाली क्या बात है? कुछ नहीं समझ आया तो बता दें। ओके, alles gut, sehr gut। Dann kommen wir auf warum. Warum ist auch ein W-Wort und bedeutet क्यों। warum का मतलब होता है क्यों। und wann benutzt man dieses W-Wort, इस W वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? कौन बताएगा? किसी भी चीज के रीजन के लिए आई थिंक। रीजन, sehr gut। Reason, Grund, एक्सप्लेनेशन। Reason, Grund। Grund bedeutet Reason। Zum Beispiel, du lernst, du lernst Deutsch। ओके, du lernst Deutsch, तुम जर्मन सीख रहे हो। einfach, सिंपल। क्या तुम जर्मन सीख रहे हो? क्या तुम जर्मन सीख रहे हो? wie fragt man कैसे पूछा जाएगा? Learn. sehr gut। लेट्स डू। Lernst du Deutsch? lernst du Deutsch, lernst du Deutsch, क्या तुम जर्मन सीख रहे हो? Ist es eine W-Frage oder ja nein Frage? Yes no question है या W question है ये? यस या नो। नाइन। Ja, yes, no. या nein या Frage। नाइन क्वेश्चन। warum? Ja, nein. वर्ब स्टार्टिंग में है और इसमें डब्ल्यू नहीं है। W word भी नहीं, es gibt kein W-Wort, यहाँ कोई W word भी नहीं है। und das konjugierte Verb steht am Anfang, जो conjugated verb है वो first position पर है। und antwortest du nur mit ja oder nein, आप इसका जवाब या तो या से दोगे या नाइन से दोगे। lernst du Deutsch, क्या तुम जर्मन पढ़ते हो? या, या, ich lerne Deutsch, हाँ मैं जर्मन पढ़ता हूँ। oder nein, ich lerne kein Deutsch, ich lerne kein Deutsch, मैं कोई जर्मन नहीं पढ़ता। Verstehen Sie? Dann I want to ask about reason। Du antwortest, आप मुझे जवाब दो। Ja, ich lerne Deutsch, हाँ मैं जर्मन सीखता हूँ। And now, und jetzt brauche ich einen Grund। Now I need a reason, अब मुझे reason चाहिए कि why do you learn German, तुम जर्मन अगर सीखते हो या सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो? What is the reason behind this? इसके पीछे वजह क्या है? Reason क्या है? And if I want to ask about reason, किसी भी काम का reason, किसी भी काम का,
अगर रीजन या वजह मालूम करनी हो, dann brauche ich immer warum. तो हमेशा कौन सा डब्ल्यू वर्ड यूज किया जाएगा? warum. und frage ich, मैं आपसे पूछूंगा कि warum, warum lernst du Deutsch? तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? Dann gibst du mir deinen Grund. Then you give me your reason. फिर आप मुझे अपना रीजन दोगे. Verstehen Sie? Du bist spät. Du bist spät. तुम लेट हो. Aber warum bist du spät? Warum bist du spät? तुम क्यों लेट हो? रीजन बताओ, वजह बताओ अपने लेट होने की. वजह, रीजन, warum. Verstehen Sie? Klar? ऊपर से तो नहीं जा रहे सबके? इतना मुश्किल तो नहीं है यार. Alles klar? Sir, how to Yes, pronounce sir. this word? वागुम हाँ, वागुम किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? Sir, how to pronounce this word? Warum? Warum? Einfach. इस warum में जो R है, spricht man R mit Rein aus, ना? इस R को हमेशा Rein से प्रोनाउंस किया जाएगा. Warum? Okay, warum? Verstehen Sie? Umme Habiba, klar? Okay, Ja, alles klar. sehr gut. Dann kommen wir auf wie. Wie? Wie bedeutet how, यानी कैसे. How, कैसे. याद है? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir means how is it going with you? सब कैसा चल रहा है? Wie means how. Get. Get kommt aus gehen. याद है gehen? Gehen means to go. चलना या जाना. Wie geht's dir? और सब कैसा चल रहा है या सब कैसा गुजर रहा है? Wie machst du das? तुम ये कैसे कर लेते हो? How do you do that? Wie machst du das? Wie means कैसे या कैसा. हाँ, zum Beispiel haben wir auch eine Frage, एक और सवाल है. हाँ, wie heißen, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Was bedeutet dieser Satz? इस सेंटेंस का क्या मतलब है? हमारा नाम क्या है? What's your name? Heißen. Heißen means to be To be called. called. To be called. पुकारा जाना, पुकारना. Sie means आप. We means how. We means how, कैसे. आपको कैसे पुकारा जाता है? आपको कैसे बुलाया जाता है? इश हाई से तलहा. मुझे तलहा के नाम से बुलाया जाता है. मुझे तलहा के नाम से पुकारा जाता है. मुझे तलहा पुकारा जाता है. हाइसन, टू बी कॉल्ड. पुकारा जाना, किसी को उस नाम से बुलाना. वी हाइज डू. वी हाइज डू, तुम्हें कैसे बुलाया जाता है? वी हाइसन जी, आपको कैसे बुलाया जाता है? वी हाई से इश, मुझे कैसे बुलाया जाता है? Verstehen Sie? Heißen means to be called. बुलाना, पुकारना. Und wie means how, कैसे. Verstehen Sie? Klar? Sehr gut. Dann, Miss Nusrat, hast du noch Frage, कोई question? हाँ, मिस नुसरत geschrieben, दोबारा explain कर दें. क्या explain? पिछला जी lesson? सर मैंने वरुण का कहा था कि वो दोबारा करें, थोड़ा मुश्किल लग रहा था. हाँ, warum means क्यों. Simple. Reason, किसी भी काम की वजह. Du lernst Deutsch, तुम जर्मन सीख रहे हो. Aber was ist der Grund? Was ist der Grund? What is the reason? Reason क्या है? वजह क्या है जर्मन सीखने की? Warum? Warum lernst du Deutsch? ओके, तो किसी भी काम को करने की वजह. Etwas passiert, कुछ होता है.
warum passiert das? वो क्यों होता है? Klar, तो किसी भी एक्शन की जो वजह होती है उसको पूछने के लिए हमेशा warum का इस्तेमाल किया जाता है. Okay? Klar? Sehr gut. Dann welche? Pronounce with me. Welche? वेल्चे वेल्शे Welche? Welche means कौन सा या कौन सी. Which? Welche Sprache sprichst du? तुम कौन सी जबान बोलते हो? Oder welche Sprache sprichst du? तुम कौन कौन सी जबानें बोलते हो? Welche means कौन सी या कौन कौन सी. Welche Sprachen? Sprachen bedeutet, Sprachen bedeutet लैंग्वेजेस. sehr gut languages. Languages. Und Sprachen oder Sprache ist ein Nomen. ये क्या है? एक noun है. And this verb also requires a noun with it. और ये वर्ड ऐसा है, ये W वर्ड ऐसा है जो अपने साथ हमेशा एक नाउन को अक्वायर करता है. कौन सी जबानें? कौन सी जबानें? Welche Sprachen sprichst du? तुम बोलते हो. तुम कौन सा म्यूजिक सुनते हो? कौन सा म्यूजिक? कौन सा म्यूजिक? Welche Musik? Welche Musik? In diesem Satz, Musik ist ein Nomen. Musik एक नाउन है. सो ये W वर्ड भी अपने साथ हमेशा एक नाउन को कैरी करेगा प्लस नोमेन. मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए प्लस नोमेन. इसके अलावा भी एक W वर्ड है जो अपने साथ नाउन को कैरी करता है. वेल्शे. वेल्शेस वे वॉट. कौन सा W वर्ड है? जल्दी से बताएं. वी फील है. वी फील. sehr gut. वी फील. Kommt immer mit einem Namen. sehr gut. वी फील ist ein W-Wort. ये भी एक W वर्ड है. und kommt immer mit einem Nomen. जो हमेशा अपने साथ एक नाउन को कैरी करेगा. क्योंकि ये जो वे वर्ड है या W वर्ड है ये नाउन की क्वांटिटी दरियाफ्त करता है, नाउन की क्वांटिटी एक्वायर करता है. तो उस नाउन का इसके साथ होना जरूरी है. बिल्कुल ऐसे ही. द ग्लाइशवाइज इन द सेम वे. वेल्शे. वेल्शे के साथ भी नाउन का होना जरूरी है. ओके. वेल्शे मींस कौन से. alles klar? समझ आया सबके? बिलाल, यस हरीबा, हुमैरा, निहाल. निहाल, हाजुना फाग कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जैसे अगर किसी से पूछते हम लोग के वेज फ्लोर तो हम लोग वेल शेट आज ही बोलेंगे, बिल्कुल. लेकिन फिर वो आंसर जो करेगा तो लाइक उसमें पहले आपने बोला नाउन आएगा राइट, तो उसका आंसर बताएंगे आप मुझे काइंडली प्लीज. वेल्शे ठाजे देखिए, आंसर में ये रूल अप्लाई नहीं होगा निहाल. आंसर का इस रूल से कोई लेना देना नहीं है. वेल्शे हाँ का जो वे वॉट है वो हमेशा अपने साथ नाउन को ओके. कैरी करेगा. बस आंसर तो कुछ भी दे सकते हो आप. हाँ सो ओके. बाइस्पील. हाँ. वेल्शे ठाजे इज 10. ये कौन सा फ्लोर है? 10 इज स्वाइट ठाजे. ये तो सेकंड फ्लोर है. स्वाइट ठाजे. ओके. सेकंड फ्लोर. तो जो जवाब है वो तो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर से दिया जाएगा. हाँ ओके सर थैंक यू. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. उसमें कोई W वर्ड का कोई किरदार नहीं होगा जवाब में. W वर्ड सिर्फ और सिर्फ सवाल में होता है. वे फ्रागन. Klar? यस सर थैंक यू. Sehr gut. Sehr gut. Dann wohin. Wohin ist auch ein W-Wort. Wohin भी एक W वर्ड है. Aber bedeutet किधर. wohin bedeutet किधर. wohin का मतलब है किधर. जबकि woher, woher का मतलब भी होता है किधर. Aber was ist der Unterschied zwischen beide? Wohin und woher. wohin में और woher में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मतलब होता है किधर.
Wer möchte antworten? कौन बताना चाहेगा? हम्म, हाँ, ओके, मिस नुसरत। वहीन का शायद है वहीन जाने के लिए पूछना और वो है आने के लिए पूछना Sehr gut, किसी क्वेश्चन में। sehr gut. Und auf Englisch, निहाल इंग्लिश में क्या कहा जा सकता है? गहन कहेंगे वहीन के लिए Wohin gehen? Sehr gut. और Und woher? कॉम्ट वहाँ कॉम्ट Woher kommen? Sehr gut, कॉमन sehr सही gut. है। Wohin? Wohin bedeutet where to? Where Where to? to? Woher? Woher means Where from? where from. Sehr gut. Where from. अगर कोई कहीं जा रहा है, अगर कोई कहीं जा रहा है, तो उसके लिए हमेशा wohin का इस्तेमाल किया जाएगा। बेनुट्समान इमा wohin। और अगर कोई कहीं से आ रहा है वापस, तो उसके लिए हमेशा woher का इस्तेमाल किया जाएगा। Zum Beispiel wohin? Wohin means where to. Zum Beispiel ich gehe raus. Zum Beispiel ich gehe raus. मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके, raus. Raus means out. मैं बाहर जा रहा हूँ। Und fragst du mich? आप मुझसे पूछो। Wohin? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Means where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? किधर? किधर जा रहे हो? Wohin? Und wohin kommt immer mit gehen? wohin हमेशा अपने साथ कौन सा वर्ब कैरी करेगा? gehen, जाना। और da fahren, fahren का मतलब भी होता है जाना। याद आया? gehen oder fahren, fliegen, reisen। अगर कोई कहीं जा रहा है, तो उसके लिए हमेशा wohin पूछा जाएगा। If you want to ask about a location, wohin gehst du? तुम किधर जा रहे हो? Wohin fahren Sie im Urlaub? Urlaub. Urlaub means vacation. Vacation, छुट्टियां। Wohin fahren Sie im Urlaub? आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? Wohin, जाना। Aber woher? Woher bedeutet where from? अगर कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। Common. Common means आना। Dann fragst du immer woher. तो आप हमेशा woher से सवाल पूछोगे। Zum Beispiel woher kommst du? Ich komme nach Hause, मैं घर आ रहा हूँ। Woher kommst du? तुम कहाँ से आ रहे हो? Woher kommst du? तुम कहाँ से आ रहे हो या तुम कहाँ से आए हो? याद आया? Ich komme aus Pakistan, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। Ich komme aus Deutschland, मैं डॉइचलैंड से आया हूँ। Woher kommst du? तुम कहाँ से आए हो? किधर से आए हो? Where from? Woher kommt dieser Brief? ये खत कहाँ से आया है? Dieser Brief. Dieser Brief, Brief bedeutet खत या लेटर। ये खत कहाँ से आया है? Woher kommt dieser Brief? Klar? Was ist der Unterschied zwischen wohin und woher? डिफरेंस क्लियर है सबको wohin में और woher में? निहाल, Yes, sir. नवीद, नशीद, हमजा, उम्मे हबीबा, क्ला, हुमेरा, फिजा, जवीरिया, मरियम, दुआ ज़ेरा, बिलाल, हरीबा, अली नवाज, अली फारूक, मिस नवीद, alles klar, मिस नुसरत। ओके, sehr gut, sehr gut। wohin और woher में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सो आई होप कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। Dann, im Deutschen haben wir viele Wörter. We have a lot of
W words, बहुत सारे W words हैं. Where was bedeutet wer? Wer? Who? Who? Wer bist du? तुम कौन हो? Wer antwortet? कौन जवाब दे रहा है? Wer möchte antworten? कौन जवाब देना चाहता है? Wer? कौन? If the person is unknown or missing, then was. Was bedeutet what यानी क्या? Trinkst du Wasser? तुम पानी पी रहे हो? Ja, ich trinke Wasser. हाँ मैं पानी पी रहा हूँ. Oder Nein, ich trinke kein Wasser. मैं कोई पानी नहीं पी रहा. तुम कोई पानी नहीं पी रहे? Then was trinkst du? फिर तुम क्या पी रहे हो? Was trinkst du? Was trinkst du? तुम क्या पी रहे हो? इस दू बिरयानी के तुम बिरयानी खा रहे हो? या इस ऐसे बिरयानी? हाँ मैं बिरयानी खा रहा हूँ. Oder nein, ich esse kein बिरयानी. मैं कोई बिरयानी नहीं खा रहा. इस दू खाइन बिरयानी तुम बिरयानी नहीं खा रहे? Then was is do? Was is do? तुम क्या खा रहे हो? Was if the object is missing. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और उसको पूछना हो तो was का इस्तेमाल किया जाता है. क्ला वन. वन bedeutet when या कब. warum benutzt man वन? वन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? wer antwortet? कौन जवाब देगा? Excuse me, sir. किसी को क्वेश्चन है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ Uh, क्वेश्चन. मिर्जा अली. yes, sir. एक्चुअली मुझे पूछना था, आपने वस बिस दू बोला तो अब इसमें आपने ये कहाँ कहा कि तुम क्या खा रहे हो? खाने का मतलब आपने Ich habe क्या वर्ड gesagt, यूज किया? was isst du? Was isst du? हम्म. Was isst du? ओके, तो इस सेंटेंस में जो इस्ट है ये क्या है? खाना. ओके क्ला इस्ट ओके, ऑल इज मीन्स क्लियर. खाना. ओके इश ऐसे मैं खा रहा हूँ. दू इस्ट तुम खा रहे हो. ओके. ओके, अच्छा ये वही कॉन्जुगेशन में से, ओके इरेगुलर बिल्कुल वर्ब्स में से. बिल्कुल. ओके अगर आपको ऐसा लगा कि ये वाला इस्ट है तो आपको गलत लगा, क्योंकि ये वाला इस्ट तो दू के साथ आ ही नहीं सकता. कभी भी नहीं आ यस सर. सकता. क्ला जी जी. sehr gut. Then वन. वन benutzt man वन. वन का इस्तेमाल कब किया जाता है? वन benutzt man वन. When we use when. ये तो अजीब सा सवाल हो गया. ओके नेहाल. सर जब हमें किसी की स्पेसिफिक टाइमिंग जाननी हो या फिर अबाउट टाइमिंग या इस तरीके से हम लोग टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस. sehr gut. Kommst du heute? क्या तुम आज जा रहे हो? Ja, ich komme heute. हाँ मैं आज आ रहा हूँ. Aber wann kommst du heute? तुम आज कब आ रहे हो? Ich komme um 9 Uhr. मैं 9 बजे तक आ रहा हूँ. ओके. sehr gut. Dann wo. वन मिनट्स मान वो का इस्तेमाल कब किया जाता है? फिजा. For location related questions. लोकेशन. sehr gut. Zum Beispiel wo wohnst du? Wo wohnst du? तुम कहाँ रहते हो? Wo bist du? तुम कहाँ हो? ओके. Dann we feel. मिस नुसरत. we feel bedeutet सर क्वांटिटी. quantity. sehr gut. किसी भी नाउन की क्वांटिटी. hast du Auto? तुम्हारे पास गाड़ी है. और hast du Autos? क्या तुम्हारे पास गाड़ियां हैं? या ich habe Autos. हाँ मेरे पास गाड़ियां हैं. तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? कितनी गाड़ियां हैं? क्वांटिटी. wie viele Autos hast du? Okay, sehr gut. Dann warum. Wann benutzt man warum? warum का इस्तेमाल कब किया जाता है? हमजा.
किसी रीजन लाइक व्हाई। Sehr gut. किसी भी एक्शन का रीजन पूछने के लिए। Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ। Wir lernen Deutsch, हम जर्मन सीख रहे हैं। Aber warum lernen wir Deutsch, हम जर्मन क्यों सीख रहे हैं? Warum? Was ist der Grund? रीजन क्या है जर्मन सीखने का? ओके, रीजन। Warum? Klar, रीजन क्या है? Deutsche Pass, ये रीजन है सबका। Sehr gut. Dann wie. Was bedeutet wie? Wer antwortet? कौन बताएगा? Wer antwortet? हाँ, ich benutze oft, मैं अक्सर यूज करता हूँ। अगर आपने सुना हो, wer, wer antwortet. Wer antwortet means कौन। Wer means कौन, कौन जवाब देगा। ओके, antworten means जवाब देना। Wer antworten, कौन जवाब देगा। Wie, हुमेरा। Yes, sir. We means how. Wie Like, means how. Sehr gut. Wie heißen Sie? आपको कैसे बुलाया जाता है? Wie ist Ihre Telefonnummer? आपका टेलीफोन नंबर कैसा है? Klar, sehr gut. Dann welche. Wann benutzt man welche? Welche का इस्तेमाल कब किया जाता है? Hmm? Wer antwortet? कौन बताएगा? Welche. Welche? मिस नुसरत। जब दो चीजों के बारे में कंपेयर करना हो या बताना हो कि कौन सी चीज ये है या कौन सी चीज ये है। कौन सी? Sehr gut, कौन सी? Zum Beispiel, तुम कौन कौन सी जबानें बोलते हो? Welche Sprachen sprichst du, na? Sehr gut, sehr gut. Und wohin und woher? Was ist der Unterschied zwischen beide? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Hmm? Wer möchte antworten? Wer antwortet? Nehal. Hmm. Sir, wohen means where to, where are you going, और woher means like where are you coming from, something like कहाँ से आ रहे हो, या फिर जब Sehr आने gut. का पूछना होगा तो woher, और जब जाने का पूछना होगा तो where to। और woher के हम लोग गेनिंग यूज करते हैं, फार यूज करते हैं, और woher के अंदर हम लोग कॉम्स यूज करते हैं सब। Kommen. Sehr gut. Kommen. यस सर। कहाँ से आ रहे हो? और wohin मतलब किधर जा रहे हो? Sehr gut. Sehr gut, Alina was. Where are you going and where are you from? Okay, dann Übungszeit. Machen wir ein paar Übungen zusammen. मिलकर करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। जिसे पूछूंगा वो बताएगा und die Reste schreiben Chat ना, बाकी सब लोग चैट में लिखेंगे आंसर। Okay, zum Beispiel, was machst du? Was machst du bedeutet तुम क्या कर रहे हो? Was machst du? Antwort ist du, आप जवाब दोगे कि हाँ, ich lerne Deutsch einfach. Einfach. Wir fragen, W questions. W questions का जो impact है वो कभी भी जवाब पे नहीं आएगा। जवाब आपका सेम रहेगा। जवाब सिर्फ तीन चीजों पर होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्ला, लेकिन सवाल को समझने के लिए आपको W क्वेश्चंस का पता होना बहुत जरूरी है। क्ला, ओके। धन बिलाल, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, वो arbeitet du, वो arbeitet du, was bedeutet dieser Satz? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? arbeitest. arbeitest means to work, काम करना। Where do you work? बिल्कुल। Okay, okay. वो Uh, means where. ich arbeite Büro. Ich arbeite im Büro. Sehr Im gut. Büro. Im Büro. Hier steht ना, यहाँ लिखा हुआ है। Sehr gut. Ich arbeite im Büro.
Ich schaue auch Chat. मैं चैट भी देख रहा हूँ साथ साथ. ओके. निहाल हुमैरा. बिगो का जो बी है वो हमेशा कैपिटल होगा. क्यों? वाइल बिगो आई नॉमिनेस्ट, क्योंकि जो बिगो है वो नाउन है और नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से आता है. जैकुट अली फारूक. ओके. डन. हाँ. जवेरिया. Javeria, here's Umesh. Javeria. Wer bist du? Was Ich bin bedeutet Max. dieser Satz? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? तुम्हें क्या कहते हैं? तुम कौन हो? Wer. सर Wer means who. Wer means who. हम्म, तुम कौन हो? Ich Ich bin bin Max. Max. Sehr gut, Javeria. Dann हाँ. Ali Nawaz. Ali Nawaz. Wohin gehst du? Wohin? Was bedeutet dieser Satz, Ali? Where are you going, sir? बिल्कुल. तुम Going. किधर जा रहे हो? Yes, sir. Ich gehe Ich gehe die Universität zu zu der Universität. Sehr gut. Zu der Universität. Sehr gut. Universität. Klar. Verstehen Sir. Sie? समझ आया? Okay. Universität. Zu. Zu Universität. का क्या मतलब है? Zu means की to. तरफ सर. बिल्कुल. To. To. Zu means to. Or towards. Sehr gut. Okay. अब आप शुरू ये सोच रहे होंगे कि ये तो दी यूनिवर्सिटेट होता है ना. दी. लेकिन इस सेंटेंस में ये डेया कैसे बन गया? ये जादू से डेया कैसे बन गया? सो इस चीज में कंफ्यूज ना हो के द साउंड वी बेटा इसको आगे चलकर देखेंगे कि ये क्या रूल है डाटिव का. जय गुड अली नवाज. देन मोहम्मद हमजा. मोहम्मद हमजा. हियर्स उमेश. हमजा. Mm, Was trinkst yeah. du? I trinks Wasser. I Ich, ich, trink. Sehr gut. ich trink, Ich trinke. trinke. Ich trinke Ja. Wasser. Was bedeutet dieser Satz? इस सेंटेंस का क्या मतलब है हमजा? Was trinkst du? Was means क्या? तुम क्या पी रहे हो? Sehr gut. Was? If the object is missing, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और आपको वो पूछना हो तो आप हमेशा was का यूज करते हो. ओके. Sehr gut. Dann Umme Habiba. Umme Habiba. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße David. Ich heiße David. David. Was bedeutet dieser Satz? Und was bedeutet wie? Wie bedeutet how. How? तुम्हें कैसे बुलाया जाता है? Heißen means बुलाना, पुकारना. To be called. बिल्कुल. To be called, पुकारे जाना. तुम्हें कैसे पुकारा जाता है? Wie heißt du? Ich heiße David. मुझे डाविड बुलाया जाता है. ओके. Sehr gut. Dann हाँ. Nashid. Nashid. Here's Dumesh. Yes, sir. Okay, Nashid. Wann gehst du zur Arbeit? Wann gehst du आप zur Arbeit? Was bedeutet dieser Satz? इस सेंटेंस का मतलब क्या है नशीद? आप काम के लिए कब जाओगे? Sehr gut. आप काम के लिए कब जाओगे या काम पर कब जाते हो? Sehr gut. And what is do? आप जवाब दोगे Ich arbeite. Ich gehe Arbeit. Ich gehe zu Zu der Arbeit. Arbeit. Sehr gut. Ich gehe zu der Arbeit. मैं काम पर जाता हूँ. लेकिन नशीद सवाल में पूछा गया है कि वन वन गेज दूसरा Arbeit. तुम काम पर कब जाते हो? और वन का इस्तेमाल किया जाता है नशीद टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए. टाइम. तो टाइम बताना तो जरूरी है ना. तो टाइम बताने के Ich लिए gehe zur Arbeit um um 9. 9 Uhr. Sehr gut. Um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Sehr gut. Klar.
ओके देन हाँ दुआ दुआ जहरा दुआ जहरा वो wants do वो wants do Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Berlin sehr gut ich wohne in Berlin was bedeutet dieses Satz इस सेंटेंस का क्या मतलब है und was zeigt वो क्या शो करता है Khan. sehr gut location ना location wo zeigt location oder Position sehr gut dann uh, Miss Nusrat excuse me जी सर जी सर was इश ist was du is do हम्म, तुम क्या तुम क्या तुम क्या खाती हो खा तुम क्या रहे खाती हो हो खा रहे खा हो रही हो या खाती हो sehr जी gut सर इश एस इश ऐसे ब्रोट ब्रोट ich esse Brot इस ऐसे ब्रोट Brot sehr gut ich esse Brot मैं ब्रेड खा रहा हूँ या खाता हूँ या खाऊंगा all is in English सब सेम है okay sehr gut then uh, अली फारूक और नेहाल ओके नेहाल उसके बाद अली फारूक नेहाल के बाद अली फारूक What comes to where are you from? Or हम्म, ich komme aus Pakistan. ich komme aus पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से आया हूँ बस इस वो है का क्या मतलब है नेहाल Where are you from? कहाँ से आए हैं आप? जय Like जय गुड कहाँ से आए हो जय गुड देन हाँ अली फारूक वी Yes, sir. alt bist du wie alt bist Ja, ich bin 25 Jahre alt. du Jahre alt sehr gut Jahre means years okay wie was bedeutet wie wie How? means how sehr gut then हाँ okay uh, Shahid Bashir here's Umesh Shahid wer ist dein Freund wer was bedeutet wer Yeah, how, yeah means wer means how much? who यानी कौन who कौन तुम्हारा दोस्त कौन है कौन तुम्हारा दोस्त है und aunt what is do आप जवाब दोगे कि mein Freund मतलब मेरा दोस्त ist जॉन मेरा दोस्त कौन है जॉन हियर स्टेट यहाँ लिखा हुआ है ओके क्ला ऑर्डर आप ऐसे भी कह सकते हो जॉन ist mein Freund जॉन मेरा दोस्त है ओके beide sind richtig दोनों ठीक हैं नशीद hast du noch Frage कोई क्वेश्चन सर मुझे मायने आ सकते हैं? यही क्वेश्चन था कि डिसाइड कैसे करेंगे मायने आएगा या मायने आएगा माइन या मायने आएगा ये दोस्त की जेंडर पे डिपेंड करता है ओके अगर तो वो फीमेल फ्रेंड है तो आप मायने का यूज करोगे और अगर वो मेल फ्रेंड है तो माइन का यूज करोगे लेकिन ये आर्टिकल्स हैं फिलहाल हाँ इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो के इंशाल्लाह आर्टिकल्स को आगे चलकर देखते हैं फिलहाल इतना याद रखें कि मस्कुलिन के साथ माइन आएगा और फेमिनिन के साथ हाँ मायने आ जाएगा क्ला sehr gut then हाँ okay then Mariam here's Umesh okay Mariam we feel costed thus oder हाँ बिलाल अख्तर we feel costed thus hmm?
Starter 5 Euro होगा। Das kostet 5 Euro. Was bedeutet wie viel? Wie viel का क्या मतलब है बिलाल? How much? How much does it cost? इतने का है ये. Sehr gut. Okay, then. हाँ. Humera. Humera. Wann lernst du Deutsch? Ich lerne am Abend, am Ich Abend Deutsch. lerne am Abend Und Deutsch. Sehr Deutsch. gut. Ich lerne am तुम Abend Deutsch. Sehr gut. तुम कब जर्मन सीखते हो? Sehr gut. Wann? Wann means कब. मतलब कब? Time related question. Sehr gut. Am Abend. Am Abend means At evening? in the evening. Sehr gut. शाम में. Okay. Javiria, hast du noch Frage oder Question? ये इस तरह भी बना सकते हैं Ich lerne Deutsch am Abend. हाँ बिल्कुल बना सकते हैं कोई इशू नहीं है. Okay. Sehr gut. Then Hariba. Hariba, hörst du mich? Hariba, wo bist Yes, du? sir. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Zu Hause. Ich bin zu Hause. मैं घर पर हूँ. Wo, was bedeutet wo? Where? Wo means where. And we use this W word in order to find or ask Location. about location of any noun. किसी भी noun की location दरियाफ्त करने के लिए विनोत्समान इम्मा वो हमेशा वो का इस्तेमाल किया जाता है. ला ओके. कौन रह गया? अगर कोई रह गया है तो प्लीज रेज योर हैंड. शाहिद, उम्मे हबीबा, निहाल, नवीद, फिजा. ओके फिजा. Dann Fiza. Was hörst du? Fiza. Hörst. Was ist hörst? Hörst, what are you listening? Hören, sehr gut. Hören means to listen. Ich höre music. Mhm. Ich höre Höre Musik. Okay, ich music. höre Musik. Was ist was? ये was क्या है? बस ये है what कुछ What? Okay, what? और Du जिसमें hörst. ऑब्जेक्ट नहीं है. Sehr gut. Du hörst. तुम सुन रहे हो. अब was hörst du? तुम क्या सुन रहे हो? Object is missing. Object missing है. जी. और उसको कंप्लीट करने के लिए ही ये सवाल पूछा गया है कि अगर तुम कुछ सुन रहे हो तो वो क्या है. ऑब्जेक्ट मिसिंग है और अब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि तुम म्यूजिक सुन रहे हो. मुझे पता चल गया. Klar? Sehr Yes, sir. gut. Dann Ali Nawaz. Ali Nawaz. Welche Musik hörst du? Welche Musik? hm? सर कौन सा म्यूजिक कौन आप सा? बोल Sehr gut. Pop म्यूजिक Musik. Ich höre Pop Music. Musik. Sehr gut. Pop Musik. Ich höre Pop Musik. Sehr gut. Pop Musik. Okay. Dann haben wir auch viele Übungen और भी बहुत सारी exercises हैं. Okay, das machen wir zusammen. Okay, इसको मिलकर करते हैं सारी exercises को. Nehmen Sie den Teil सब part लें. शाहिद, निहाल, नवीद, नशिद, उम्मे हबीबा, हुमैरा, दुआ जहरा, अली नवाज, हरीबा, मिस नुसरत, जवेरिया, फिजा. नवीद Wer, was oder wie? Wer? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? तुम कौन हो? Ich bin Hana. मैं तो हना हूँ. Dann कौन Woher kommst du? Woher kommst तुम du? कहाँ से है वो है तुम कहाँ से आए हो woher Woher kommst kommst du? du? Ich komme aus Russland. Und du? Russland. और तुम कहाँ से आए हो? Sehr gut. wants वो wants to. तुम कहाँ Wo रहते wohnst हो du? Wo Wo wohnst du? Wants Wo to. wohnst Sehr gut. वो तुम Ich कहाँ wohne रहते in Moskau. Moskau. du? Moskau. Wie alt We bist du? are Wie bist du. Wie alt bist du? Wie तुम alt bist Wie du? alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 11. Sehr gut. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich Wie heiße heißt du? Maria. Und du? Sehr gut.
Was Was mag was du du? gern? Was Was magst du gern? तुम शौक से क्या करते हो? Ich mache gern Sport. Sehr gut. Wie ist deine wie Telefonnummer? ist deine Telefonnummer? Sehr gut. Wie ist deine Telefonnummer? What's your phone number? अच्छा, एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में auf English fragt man immer what's your telephone number और what's your phone number. इंग्लिश में पूछा जाता है कि आपका फोन नंबर क्या है? what. अब आप सोचेंगे कि अगर इंग्लिश में what पूछा जाता है तो जर्मन में तो यहाँ was आना चाहिए ना, was आना चाहिए क्योंकि was का मतलब होता है what. क्या? यस सर। अब दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। क्यों? इंग्लिश से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जर्मन जी में, जर्मन जबान में या जर्मनी में लोग जब भी किसी से उसका नाम पूछते हैं, उसका फोन नंबर पूछते हैं, तो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, बल्कि वी से पूछा जाता है, यानी तुम्हारा नाम कैसा है, तुम्हारा फोन नंबर कैसा है। वी, वी इज deine Telefonnummer, वी इज deine Adresse, तुम्हारा एड्रेस कैसा है। ओके, सो इन सब चीजों के लिए हमेशा वी का इस्तेमाल किया जाता है। क्ला, यस इस सर चीज का क्लियर। ख्याल रखिएगा। Hmm, Who is this? What's Where the is what's this? this? What Where where is is this? this? Where is this? Where? Sehr gut, wer? Wer ist das? Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ich möchte Saft. Sehr gut. Möchtest. ओके, इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, जैसे साइन मोडाल भी आप दस लेने भी एच बेटा, इसको आगे चलकर देखेंगे मॉडल वर्ब। Woher kommt Woher dein Freund? Woher kommt dein Freund? woher, sehr gut. Okay, dann Wer bist du? Wer bist du? wer bist du? Ich bin Chris. Wie alt bist Wie du? alt Alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Sehr gut. Shahid, Nehal, Naveed, Nashid Hamza, Miss Nusrat, Javeria, Dua Zehra, Nimis Gentile सब पार्ट लें। वी, sehr gut. वी फील है। वी फील वी फील। कितने हैं We सिबलिंग्स feel कितने हैं वी फील है सर। Wie viele? B1। we feel वी it. फील, Viele. वी वी फील फील हमेशा लो। प्लूरल, Plural के साथ. प्लूरल के साथ प्लूरल। आएगा ना। Was ist Geschwister? Geschwister क्या है? Siblings. सिबलिंग्स। Sisters? Siblings, Siblings. भाई बहन। सिस्टर के लिए यूज किया जाता है शुएस्टा, Schwester. जबकि ब्रूडा कहा जाता है भाई को, पूडो। और गेशुइस्टा का मतलब होता है सिबलिंग्स यानी बहन भाई। ओके, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। सो Beispiel, wie viele Geschwister hast du? तुम्हारे कितने सिबलिंग्स हैं? Ich habe zwei Geschwister. मेरे दो सिबलिंग्स हैं। Ich habe einen Bruder und ich habe eine Schwester. Klar? Okay. यस सर। वन। वन Sehr gut. Wann? वन कब Wann schreiben wir den Test? हम टेस्ट कब दे रहे हैं? हम Donnerstag, Thursday को। Okay, sehr gut. Schreiben means to write. Okay, to write. राइट। लिखना. To जी write. सर Okay. Dann haben wir auch viele Übungen और भी बहुत सारी exercises हैं. Aber machen Sie alle Übungen zu Hause. इन सब exercises को घर से कीजिएगा, okay? Am Ende, ganz जी wichtig, सर बहुत ज़रूरी, am Ende haben wir eine Sprechübung. Aber ganz wichtig, बहुत ज़रूरी für die Leute, die Prüfung schreiben, खास तौर पे वो लोग जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जी सर wenn Sie an einer Prüfung teilnehmen, जब भी आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो गोइते का एग्जाम हो, टेल्क का हो या यूएसडी का हो, so beim Sprechen
oder im mündliche Prüfung जो ओरल एग्जाम होता है आपका स्पीकिंग का, उसमें Sie haben drei Teile. आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग के. Erster Teil, पहले पार्ट में uh, stellen Sie sich vor, you introduce yourself. Das haben wir schon gesehen. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पहले सेशन में कि how we introduce ourselves, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है. Ich heiße Talha, ich komme aus Pakistan, ich bin 25 Jahre alt und bla bla. Alles klar, das verstehen Sie schon, ना? ये सब आप लोगों को पता है. Aber heute schauen wir Teil 2. आज देखेंगे कि Teil 2 यानी Part 2 में क्या होता है. In diesem Teil haben Sie ein Thema. You will have a topic. आपको कोई भी टॉपिक मिल जाता है. Zum Beispiel, das Thema heißt Freizeit. आपको जो टॉपिक मिला एग्जाम में वो थेमा क्या है? Freizeit. Thema Freizeit. Freizeit bedeutet Free Time. Zeit का मतलब होता है टाइम und frei का मतलब होता है फ्री. So Freizeit means free time. Und bekommen Sie auch 6 Wörter. आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 6 वर्ड्स भी मिलते हैं. 6 कार्ड्स मिलते हैं आपको और उन कार्ड्स में 6 वर्ड्स होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं. लेकिन वो जो वर्ड्स हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं. So Beispiel bekommen Sie ein Thema Freizeit. आपको जो टॉपिक मिला वो क्या था? Freizeit यानी फ्री टाइम. तो टॉपिक तो आपका सेम रहेगा, टॉपिक सेम रहेगा Freizeit, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स दे दिए जाएंगे, कुछ कीवर्ड्स. ओके, then benutzen Sie 2 Wörter. आप इन 6 वर्ड्स में से कोई से भी 2 वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे. So Beispiel, ich finde Sport einfach. मुझे स्पोर्ट का जो वर्ड है वो आसान लगता है. ओके, तो मैंने अपने लिए एक वर्ड चूज कर लिया और इन वर्ड्स में मैंने देखा तो इन वर्ड्स में मुझे म्यूजिक का जो वर्ड है वो आसान लगता है, तो मैंने अपने लिए म्यूजिक का वर्ड चूज कर लिया. ओके, benutzen wir nur 2 Wörter. हमें चॉइस होगी कि कोई से भी 2 वर्ड्स इसमें से चुन लें अपने लिए जो हमें आसान लगते हैं. Dann Sie stellen Ihrem Partner 2 Fragen. फिर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और अपने पार्टनर से कोई से भी 2 सवाल पूछेंगे और उन सवालों में इन वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए. ओके, sprechen Sie mit Ihrem Partner. एग्जाम में आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे होते हैं. Zum Beispiel, Humera und Ariba nehmen den teil. अरीबा और हुमैरा जो है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं. So Humera und Ariba unterhalten sich zusammen. वो दोनों आपस में बातें करेंगी और इन दोनों को एग्जामिनर नोटिस करेगा कि हुमैरा कैसे सवाल पूछ रही है और अरीबा उस सवाल का जवाब कैसे दे रही है. Dann Ariba hat auch 2 Wörter. और अरीबा के पास भी 2 वर्ड्स होंगे. Dann stellt Ariba 2 Fragen. और फिर अरीबा हुमैरा से 2 सवाल करेगी using these 2 words. इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए. Und antwortet हुमैरा. और हुमैरा उन दोनों सवालों का जवाब देगी. ओके, और जो सवाल किए जाएंगे वो सिर्फ 2 ही तरीकों से किए जा सकते हैं, या तो या nein fragen या तो वे fragen. इन 2 स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं है सवालों का. ओके, तो अगर आपका ये टॉपिक कमजोर है या nein fragen का और वे fragen का, तो ये पार्ट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. ओके, zum Beispiel, Sie haben 2 Wörter. आपके पास 2 वर्ड्स हैं.
मुझे दो वर्ड्स आसान लगते हैं, हॉबी, मैंने अपने लिए एक हॉबी का वर्ड चूज कर लिया, और एक आबंड, और एक आबंड का वर्ड चूज कर लिया। ओके, उन फ्रागेश, मैं पूछूंगा एक सवाल हॉबी से रिलेटेड। अब हॉबी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है सवाल, जो आपको आसान लगे। वो सवाल आप चाहें तो डब्ल्यू क्वेश्चन से बना लें या सिंपल या ना फ्रागे से बना लें, ऐसी सीगाल, इट डजेंट मैटर। लेकिन उस सवाल का, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। सो बाइस फील फ्रागेश, मैं पूछूंगा कि वस इज डाइन हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है? हुमैरा फ्राक्ट अरीबा, हुमैरा अरीबा से पूछेंगी कि वस इज डाइन हॉबी अरीबा, अरीबा तुम्हारी हॉबी क्या है? Und antwortet अरीबा darauf, और अरीबा इसी सवाल का जवाब देंगी। zum Beispiel mein Hobby ist Buch lesen, मेरी जो हॉबी है वो क्या है? किताब पढ़ना। ये तो एक सवाल हो गया एक वर्ड का इस्तेमाल करके। Dann Humera hat auch anderes Wort, हमारे के पास एक दूसरा वर्ड भी है। Und das heißt Abend, और वो वर्ड क्या है? Abend। अब उमेरा को एक ऐसा सवाल पूछना है जिसमें आबंड का इस्तेमाल हो रहा हो। अब सवाल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। zum Beispiel तुम शाम में क्या करते हो? Was machst du am Abend? Was, तो आपने देखा कि इन दोनों सवालों में किसका इस्तेमाल किया गया? W वर्ड का। तो W वर्ड्स वे व्योटा जिन गांस विस्टिज बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमैरा फ्राक्ट अरीबा, हुमैरा पूछेगी कि was machst du am Abend, तुम शाम में क्या करती हो? Und अरीबा antwortet, अरीबा जवाब देंगी Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीखती हूँ। einfach, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा जवाब, छोटा सा सवाल। Verstehen Sie? Klar? समझ आ रहा है सबके? ये ऊपर से जा रहा है। ये बहुत सिंपल सा यस एक सर क्लास। बहुत सिंपल सा पार्ट होता है। इस पार्ट को हम अपने लिए खुद कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। सवाल जितना आसान हो सके उतना आसान पूछें, और जवाब जितना आसान हो सके उतना आसान जवाब दें। ज्यादा प्रेपोजिशंस इस्तेमाल करने की या आर्टिकल, डाटिव आर्टिकल, अकुजाटिव सोचने लगे, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ओके, सिंपल, मेक इट सिंपल। सो जी haben sechs Wörter, आपके पास 6 वर्ड्स होंगे और उसमें से 2 आपको सेलेक्ट करने हैं। ओके, और उन दोनों वर्ड्स के ऊपर एक सवाल पूछना है और उसका जवाब लेना है। इसकी बेस पे मार्किंग होती है। क्ला, तो ये कुछ पास्ट पेपर्स के कोई थे कि हाँ पार्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो बाय स्पील, हर सवाल का एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। वैसे तो किसी भी वर्ड के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। सो बाय स्पील स्पोर्ट, was ist dein Lieblingssport, तुम्हारा Lieblingssport क्या है? Lieblings bedeutet favorite। Was ist dein Lieblingsessen, तुम्हारा Lieblingsessen यानी फेवरेट फूड क्या है? Was ist dein Lieblingssport, तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? Mein Lieblingssport ist Fußball, मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो फुटबॉल है। सिंपल, आप ऐसे भी पूछ सकते हो kann man auch sagen einfach के magst du Sport? Einfach, इसमें क्या मुश्किल है? Ja, ich mache Sport। Einfach, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। Musik, zum Beispiel, hörst du Musik? क्या तुम गाने सुनते हो? Ja, ich höre Musik, हाँ मैं गाने सुनता हूँ या सुनती हूँ। Einfach, ये कौन सा सवाल था? Ja, nein Frage oder W-Frage? या 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 Ja, nein नहीं। Frage। और ये कौन सा सवाल था? वे फक वे W-Frage। फ्रागे। और ये कौन सा सवाल है? Was machst
Oder ist Ja, Maus nein. Ja, durchbohren? nein, Frage. Ja, nein, Frage. Ja, nein, Frage. Einfach. It totally depends on you कि आप क्या इस्तेमाल करो. चाहो तो आप W क्वेश्चंस का यूज कर लो, चाहो तो या nein फ्रागे का यूज कर लो, लेकिन जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो सही होना चाहिए. ओके, sehr gut. Zum Beispiel Kino. Kino से क्या सवाल पूछा जा सकता है? Gehst du ins Kino? क्या तुम सिनेमा जाते हो? Ja, ich gehe ins Kino. हाँ, मैं सिनेमा जाता हूँ. Oder nein, ich gehe nicht ins Kino. मैं सिनेमा नहीं जाता. Ich habe keine Zeit. मेरे पास वक्त नहीं है. Verstehen Sie? Abend, Abend. Was machst du am Abend? Was machst du am Abend? तुम शाम में क्या करते हो? Ich lerne Deutsch am Abend. मैं शाम में जर्मन सीखता हूँ या सीखती हूँ. Einfach. Okay? Hobby. Was ist dein Hobby? तुम्हारी हॉबी क्या है? Mein Hobby ist lesen. मेरी हॉबी है रीडिंग करना. Freunde. Freunde means दोस्त. ये थोड़ा मुश्किल है ना? Freizeit. Freunde. Triffst du Freunde? क्या तुम दोस्तों से मिलते हो? Ja, ich treffe Freunde. हाँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ. Treffen. Pronounce with me. Treffen. Treffen means to meet. मिलना. Okay, klar. To meet. मिलना. Ich treffe meine Freunde. मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ फ्री टाइम में. So I hope कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा ना. कोई मुश्किल तो नहीं है. पार्ट समझ आ गया. पार्ट को करना कैसे अब वो तो आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं. Das Bauchspiegelübung. It requires a lot of practice. लेकिन इस टास्क को समझाना असल मकसद है कि आपको समझ आए कि टास्क में करना क्या है. ओके, आपको पहले से पता होना चाहिए. तो वो लोग आप में से जो एग्जाम देने वाले हैं